السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی بد مذہب بدعقیدہ وہابی دیوبندی ہیں، تمام کی حقیقت اس چینل پر دکھائی جاتی ہے، اور آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک صحیح بات پہنچ سکے، اور صحیح بات سمجھنے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو۔ اور جو میرے مومن بھائی، مسلمان بھائی روزگار سے پریشان حال ہیں، تو ایسے بھائی ضرور مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بے روزگار ہیں، پڑھائی لکھائی اور ڈگری کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی بھی بے روزگار بیٹھے ہیں، ایسے بھائی مجھے ضرور کال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ میں سلام نہیں لیتا ہوں نا یار، آپ پر سلام ایسے لوگوں رسول۔ کا۔ اچھا صاحب، کوئی بات نہیں۔ سلام کا مطلب کیا ہے حضرت؟ ایمان والوں کو سلامتی کی دعا دینا ہے، بے ایمانوں کو کون سی دینا ہے یار؟ سب آپ ہی فیصلہ کر کے بیٹھے۔ فیروز بھائی، ہم جو ہے نا جی جی لوز پوائنٹ والوں میں سے ہیں نہیں۔ دیکھو، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، پھر بھی آپ ہمیں سلام کرو اور ہم آپ کے سلام کا جواب دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جب حضور نے منع فرما دیا تو یہ تو صحیح صحیح، حضور سمجھ کی گیا حدیث کی خلاف ورزی ہوگی۔ میں سمجھ گیا حضرت۔ اب سمجھ گئے نا آگے سر؟ جی 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 حضرت، اتنا نہیں سمجھا تو پھر بیکار ہے۔ تو اب میں نے جی تھوڑا سا کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، میں اصلاح کرنے کال کی کوشش کی تھی۔ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ ریکارڈنگ میرے پاس تو ہوتا ہی رہتا ریکارڈنگ۔ چلیے میں بھی کر لیتا ہوں۔ کریے۔ This call is now being جی recorded. حضرت، بتائیں آپ غوث اعظم مشکل کشا اور علی مشکل کشا کے تعلق سے۔ اچھا، خالی اسی پر بات کرنا ہے یا کچھ اور بھی بات کرنا ہے؟ بس اب سب طرف کی باتیں ہوتی ہیں تو کسی ایک موضوع پہ بات ہاں، کلیئر نہیں پاتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے امی اور ابو جان بھی مشکل کشا تھے آپ کے لیے۔ تھے نہیں ہیں مشکل ابھی۔ کشائی کا معنی کیا، جی مطلب جی کیا ہے؟ نہیں، ابھی ہے میرے والد والدہ میری ماشاءاللہ سلام آپ بحیات کے ہیں۔ والد والدہ بھی آپ کے لیے مشکل کشا ہیں؟ جی جی اللہ بالکل، نے وہ بنایا حیات ان ہے کو نا۔ تمہارے لیے مشکل کشا۔ اچھا بالکل بالکل، اچھا جی جی مشکل تفصیل کشا کا کریں۔ معنی کیا، مطلب کیا؟ پہلے تو یہ تھوڑی سی تعریف کریں۔ اسی لیے تو میں آپ سے، مجھے پتا ہوتا حضرت تو میں آپ سے کیوں پوچھتا۔ تو اسی لیے بھٹک گئے جب معلوم نہیں ہے تو؟ بھٹک نہیں گیا میں، بھٹک کیوں گیا؟ بھٹکنے کی بتاؤ کون سی بات ہے؟ ارے بھائی، یہی بات ہے کہ اللہ والوں کی شان میں توہین کرتے ہیں آپ۔ کیا اللہ توہین کر والوں دی کی بھائی؟ جو شان و عظمت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیا بات توہین کر دی بھائی حضرت؟ اب کہہ رہے ہیں آپ کے حضور غوث اعظم جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں کہ نہیں ہے، حضرت ارے یہ مولا حضرت علی اب میں کرم نے تھوڑی اللہ لکھا وجہ ہے، الکریم مشکل کشا ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ آپ نے لکھا ہے، میں نے تھوڑی لکھا ہے۔ جو چیز میں میں نے کیا کروں گا، لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے آپ میں نے؟ آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ لکھا ہے۔ کیا؟ ایک منٹ کنفرم کر دیتا ہوں، کبھی میرے کہنے میں اچھا، آپ سے غلطی ہو اور جائے۔ مجھے بھی ذرا اس کا اسکرین شاٹ بھیج دو، میں بھی دیکھ لوں کیا لکھا ہے۔ اسکرین شاٹ یار، وہ اسکرین شاٹ آپ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہو نہیں پائے گا، کیا کہتے ہیں، کیا نہیں ہو پائے گا؟ اسکرین شاٹ ہو نہیں پا رہی آپ کے، اس کا جو اسٹیٹس لگوانا آپ کا، اس میں لکھا ہے روشنی شفا ہربل تیل، ہاں، کچھ موبائل نمبر لکھا ہے، اس میں لکھا ہے یا غوث اعظم المدد۔ تو یا غوث اعظم المدد اگر کہہ ہاں دیا جی تو جی اس جی، میں اور کیا پورا دقت ہے؟ آپ پورا کو کیا پورا پریشانی ہے؟ پورا سن لیجیے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے حضرت، میں نے دیکھا تو میرا من کرا آپ سے۔ اب آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی سوال بھی نہ پوچھے؟ نہ بالکل نہیں، علی، بالکل نہیں۔ جی تمام جی جی جتنے بھی سنیے تمام سنیے، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہٹے ہوئے لوگ ہیں، جی جی جی، سمجھانا کام ہے، منوانا کام نہیں ہے۔ نہیں آپ سمجھانے کے لیے تو، آپ نے سمجھانے کے لیے تو میں نے آپ سے کال کریے، ورنہ تو میں آپ کے بارے میں تو کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن میں جی، تحقیق میں مطلب جینون بندے کا نہیں کام ہے بھائی، جو یہ کر رہا ہے یہ آپ بتا دو کیوں کر رہے ہو؟ اگر بہتر ہوگا تو ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کر رہے نا، یہ تو بات ہے۔ آپ سے ہم نے نہیں کہا نا کہ تم کرو۔ نہیں آپ کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے، ارے تو پھر آپ کے وہی کہنے سے بات۔ ہی تھوڑی سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے یا غوث اعظم المدد یا علی مشکل کشا، یہ اچھا سب ہاں، تو آپ آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے، اور اگر نہیں بتانا چاہتے ہیں تو اب ہی بات ختم ہو جاتی ہے، فون کاٹ دیتے اچھا، ہیں۔ تو جی جی مشکل کشائی کی تعریف کیجئے ذرا۔ آپ کے حضرت، آپ سے نزدیک یہ جو ہم جو یہ ہاں کہتے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی یا جی غوث اعظم المدد یا جی علی جی مشکل کشا، اگر جی جی یہ بندہ کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے، حضرت، کیا ہے؟ میں کسی پہ تہمت یا فتوی لگانے تھوڑی، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں،
حضرت یہ جو आपने ये गौ से आदम अल मदद आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मदद मांगते हैं और हजरत अली को मुश्किल कुशा लिखा हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो आप आप इससे मेरे हुक्म लगाइए ना पहले। आप तो खुद पहले से गुमराह हैं, भटके हुए हैं। आप पहले अरे हुक्म तो लगाइए। आप मुझे जानते नहीं है फिरोज साहब, अरे आप हजरत तो मुझे आप जानते तो नहीं है हक ठीक पे हैं। तरीके से कि मैं किस तरह अरे जो है बुराई मैं करता हूँ बद मजहबों की, बदअकीदों की। नहीं नहीं मुझे पता उनका था, इलाज अच्छे से करता हूँ मैं मुझे पता इंशाअल्लाह। है, आप मुझे पता दुनिया है के हजरत। दुनिया के किसी भी कोने का कोई बदमजहब ऐसा अभी है नहीं कि इंशाअल्लाह नूर हसन के सामने वो टिका हो किसी भी मामलात में। ओहो, और वो ये हजरत तुम्हारे ये देखो, अल्लाह ने गुमान करने को मना करा है। ना अल्लाह गुमान ने नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह ने गुमान जो कर ले अपने आप पे कि मैं साहब फजल अपने है ये इल्म, अल्लाह रब्बुल इज्जत का, गुमान नहीं है, सबसे घमंड नहीं बड़ा है, तकब्बुर गुमान नहीं है। इंसान को सबसे बड़ा तकब्बुर जब हो जाए, नहीं समझ लो नहीं जब नहीं, वो अपने बिल्कुल इल्म नहीं। की तारीफ करने लगता है। अच्छा तो आप हम तो तारीफ अल्लाह से तौबा कीजिए करते मुश्किल रहते हैं कि कुशाई अल्लाह की। हमें हमें इस फितने से ही महफूज रख कि हमें किसी चीज का गुमान हो जाए अपने ऊपर। तो आपको गुमान हो गया ना, तो आप तो अल्लाह वालों से नहीं बढ़ के हैं, भड़के बढ़ के अल्लाह मैंने तबारक व तआला से, जो अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं, जो महबूब जी बंदे हैं, जो जी जिनको हम गौसे आजम कहते हैं, मुश्किल जी कुशा जी मौला अली कहते हैं, जी 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 तो उनसे बढ़ के हैं आप लोग, उनसे अफजल हैं आप लोग अपनी नजरों में। क्यों, कैसे? और शिरक और गुमराहियत के फतवे लगाते फिर रहे हो, कुफ्र के अरे फतवे हजरत लगाते फिर रहे हो। अरे हजरत, ये लिखा आपने है और आप ये मेरे अरे ऊपर डाक जनाब, कर रहे हैं। अच्छा तो ये लिखा है तो इसमें हुक्म लगाइए ना आप, फिर उसके बाद की बात होगी, और ये अच्छा तुम्हारे अच्छा, खिलाफ ना हो, बस इतना याद रखना। जी जी जी, आप बताओ, आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं, बताओ। मैं ये आप ये चाह कह रहा है रहा कि हूँ पहले इस पर हुक्म लगाइए। मैं क्यों इनको मुश्किल कुशा नहीं मानता हूँ? मानते आप ये हो? मुझसे यही पूछना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ मानते हो आप क्या? मैं तो अल्लाह के सिवा किसी को भी मुश्किल कुशा नहीं मानता हूँ। माशाल्लाह, मुश्किल कुशाई के माना बताइए। मुश्किल कुशा मददगार, मददगार। जो गैबी मदद कर सकता है, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। दुआ अल्लाह से ही की जा सकती है बस। मुश्किल कुशा के और माने गैबी और मददगार के हैं। और जो एक मिनट पहले यहीं जी रहिए। जी जी जी, मुश्किल कुशा के माने गैबी मददगार के हैं। तो हजरत मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ फिर वही इसका बात इसका यार, या तो ऐतराज मत किया करो, एतराज किया करो तो पूरा पढ़ लिख कर आया करो। हाँ हाँ, अच्छा चलिए बताइए, मतलब कोई आदमी अनपढ़ आप आदमी तारीफ आपसे देखिए देखिए आपसे पूछ नहीं था, आप ये कहो ना, आप लिख देख दो रहे ना, हैं जनाब कोई भी हजरात, अनपढ़ आदमी जो ये है मेरे ये पास। साहब पटवाई के हैं हमारे, हाँ और हाँ ये पहले बिल्कुल सुन्नी सहीउल अकीदा थे। इनके माँ बाप जी आज जी, भी सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, नहीं इनका मेरी खानदान सुन्नी सहीउल मेरी अकीदा है, मगर मेरी ये भटक चुके हैं। तो भाई आप बताइए ना, इस बात तो बताइए ना, हाँ, ये जो बात नहीं आपने नहीं, लिखी है, देखिए हम तो, या गौसे आजम अरे अल हमने मदद। कि अरे हमारे लिखने से ही आप समझ जाइए कि हम हाँ तो वो तो हम मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हम मुश्किल कुशा मानते हैं, कि वो आपका हमारी अकीद, मुश्किलों में काम आते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल बनाया है, अच्छा अच्छा, हाँ अल्लाह यही तो ताला मैं ने पूछना उनको चाह रहा हूँ। इस काबिल बनाया है। जी जी, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया साहब। अल्लाह ताला ने ये उनको जो है कुदरत अता की है, ताकत अता की है, ये अच्छा उन्हें ये उन्हें सिफत अता की है। अच्छा अच्छा, तो आपने हजरत कहा, अल्लाह ताला तो कुरान में सुनिए, फरमाया आप मुर्दों को और बहरों को नहीं सुना सकते। हाँ तुमने सही कहा, कुरान पाक की आयत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को समझाते थे, उतबा अच्छा और अच्छा, शहबा को समझाते थे। जी जी जी, तो ये आयत वहां उतरी है, आपने इसकी अच्छा, तफसीर भी पढ़ी है? बिल्कुल लाइए बिल्कुल, आप बताइए लाइए तफसीर। खोलिए इस तफसीर को जरा, अभी तुम्हारी जो है अकल ठिकाने लगाता हूँ। जी जी जी, खाली ऊपर का लगाइए। तर्जुमा पढ़कर, लड़के आए हो क्या आज मुर्दों कहीं से से? गुमान सुनो, मुर्दों से गुमान वो लोग नहीं है जो इस दुनिया लड़के से विसाल कर चुके हैं। मुर्दों लड़के से आए हो गुमान क्या? वो लोग हैं, मुर्दों से माना वो लोग हैं हम्म, या तो काफिर मुशरिक हैं, या फिर हम्म, वो चलते फिरते मुर्दा काफिर हैं जो हम्म, हुजूर की बातें सुन रहे हैं पर जी जी, हुजूर की बात को मान नहीं रहे हैं। वो मुर्दा अच्छा, हैं, चलते फिरते मुर्दा हैं। अबू जहल चलता नहीं फिरता अल्लाह मुर्दा के था। सिवा तो कोई, अरे अल्लाह खामोश के तो सिवा तो रहिए मददगार, अल्लाह के फिरोज सिवा तो कोई साहब, मददगार है नहीं कोई। फिरोज साहब खामोश। जी 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 इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, कत्ल जी हो जी गए, जी मालूम जी है? जी 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 जी, शहीद होगा बिल्कुल। आप उनको जिंदा मानते हैं कि मुर्दा मानते हैं? जवाब दीजिए। शहीद, हाँ बिल्कुल जिंदा है वो, अल्लाह के हुजूर अरे जिंदा है। यार, आप तो कह रहे हैं कि अल्लाह की जिंदा है, तो अब अल्लाह वो की हमारी जन्नतों में मदद कर सकते हैं हमारी मुश्किल में कि नहीं? अल्लाह की है अता ना? से, जी, अल्लाह तबारक व तआला की अता से वो हमारी मुश्किलों में हमारी जो है मदद कर सकते हैं कि नहीं? मदद का मतलब ये तो है कि मैं उनसे दुआ करूं, मतलब वो मदद दुआ कैसे करना करेंगे? भी ये मदद हुआ कि नहीं?
अरे नहीं, मैं उनसे दुआ करूंगा ना। अच्छा एक और चीज बताइए। अच्छा ना ना, इसी अच्छा बात पे आ जाओ। एक और चीज, अच्छा, फिरोज मैं साहब, उनसे फिरोज मदद साहब, कैसे फिरोज साहब, लूंगा? अरे अरे भाई सुनिए तो, आप नूर समझना हसन चाहते साहब, हैं कि लड़ाई करने आए? आप लड़ने आए हैं, मेरा तो बहुत अच्छा मूड है। और हाँ मैं तुम्हारा मूड अच्छा था ना, तो आप मेरी तो सुनो, आप कम से कम घावड़ तो आदमी मेरी, सवाल करने वाला सुनता है, भौंकता नहीं है। अरे तो ये लड़के आए ध्यान तो रखो आप। बीवी से फिरोज लड़ाई हो गई साहब, है सुबह। फिरोज साहब ये ध्यान रखो आप। जी जी जी, आप तो लड़के आपको आए यही हजरत। मालूम नहीं है कि सवाल करने वाला जो है सवाल करता है, फिर उसका जी जी जवाब लेता है, ठीक है? जी 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 अब मैं जो जी जी तुमसे पूछूं उसका जवाब देना है आपको, ठीक है? जी 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 बस जी आप ये जी। बताइए, हम्म, आप जिंदा लोगों की मदद के कायल हैं या विशाल बिल्कुल। शुदा? ये पहले पूरी बात सुन लो, ये बौखलाओ मत। अच्छा अच्छा, तुम चलिए। लोगों के अंदर यही बहुत बड़ी कमी होती है अच्छा अच्छा, कि चलिए आधी चलिए। अधूरी बात सुनते ही मतलब बोल पड़ते हो बीच में। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है? अरे हाँ भाई, हो रहा आप है, मैं तो बोल के कह रहा हूँ, उससे हो तो प्यार रहा से है। आप बात को सुनिए, और इसलिए हम्म सुनिए कि तुम्हारी हम्म, और मेरी बात आवाम के सामने क्लियर जी पहुंचे। ऐसा ना जी हो मैं जी बोल रहा हूं तुम भी बोलो, बीच में आवाज जी जी गड़बड़ हो जाए, कोई बात कुछ की कुछ समझ में आए। जी जी जी। अब आप ये बताइए कि आप दुनिया में हयात शुदा लोगों के मदद के कायल हैं तो या हजरत, विशाल शुदा लोगों की मदद के कायल भी हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, मैं मैंने, बताऊं नहीं, जो मैंने पूछा उसका जवाब अरे दीजिए। हाँ तो अब मुझे बोलने भी दोगे कि या सब आप ही बोलोगे? नेक, अल्लाह ने फरमाया नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलहदा हो जाओ। तो ये अगर माशाअल्लाह। अगर अगर मैं आपसे, यानी कि अब मैं आपसे आपसे भी मदद ले रहा हूँ, ये समझ रहे हो? तो ये ये मैं बुराई आपसे है कुछ, सुन लो जरा, ठंड अगर? रखो। हाँ। अरे ठंड रखो जरा। दीन और दुनियावी काम में एक दूसरे की मदद करना है, तो अल्लाह ने फरमाया है कि अगर एक दूसरे की मदद, ये अल्लाह ने बसी बनाया है ये सिस्टम कि एक दूसरे की मदद के बगैर दुनिया नहीं चलेगी। अब ये जो मैं आप, अब जो दुनिया में नहीं है, जैसे मान लो आप कहते हो कि भाई अम्मी से रोटी ना मांगो, तो तो दुनिया में अगर मेरी माँ अगर हयात होंगी तो मैं रोटी मांगूंगा, और बाहयात जो हयात आदमी नहीं है उससे रोटी कैसे मांग सकते? किसी ने मांगी है आज तक? और दूसरी बात, सबूत और दे जो देंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल, जो दुनिया में मौजूद नहीं है उससे तो दुआ होगी फिर। जैसे मान लो आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुश्किल कुशा, या हजरत अली को मुश्किल कुशा मानते हो, ठीक है? तो मेरी बात का जवाब नहीं है ये, मेरी बात का जवाब नहीं है ये, अरे मेरी बात का हजरत, जवाब नहीं है, बिल्कुल बात को तुम घुमा रहे हो। नहीं नहीं, सुनो सुनो। मैंने सिर्फ इतना पूछा है। अरे तो हजरत आपने पूछा है तो मुझे अपनी फिरोज भाई मुझे, गुमराहियत फैला रहे हो, और अरे तो तुम मुझे गुमराह अपनी हो बात, चुके हो, अरे तो और हजरत दूसरों सब को भी गुमराह करने की कोशिश में सब लगे पड़े हो वहां पटवाई के सब- अंदर। और आप तुम्हारी गुमराह हो गए क्या? क्या चीज? मेरी बात से आप गुमराह हो गए क्या? मैं क्यों गुमराह हुआ? मैं तुम्हारे जैसे गुमराह लोगों को जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह राह रास्त पर ला चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों को। अल्लाह के आप फजल करम से मेरे आप चैनल पे जाके देखो। आप भी आएंगे क्या गुमराही से? हाँ मैं पहले बद मजहबों में था, गुमराह लोगों में था। अच्छा, पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितने राह साल रास्त पर आ चुका हूँ, हक पर आ चुका क्या हूँ। थे आप? और क्या मैं थे आप? दावे से ऐलान कर रहा हूँ, क्या थे आप? मैं देवबंदी लोगों में पढ़ता था, अच्छा, कहाँ पढ़ते और थे? टांडा बादली। अच्छा अच्छा। जी तो हाँ, फिर टांडा आप, बादली में देवबंदी है कि नहीं है? मुझे तो खैर इतना बेहतर पता नहीं है, लेकिन तो फिर आपकी देखिए मैंने आपकी जो आपसे सिर्फ आपकी छोटा सा तालीम तो फिर सवाल गुमराह पूछा। में हुई है। जनाब हजरात, इनको जवाब ये देना चाहिए था कि ये जी मुश्किल कुशा जो मतलब मदद जो तलब करते हैं वो सिर्फ हम्म, हयात लोगों से करते हैं, जिंदा लोगों से करते हैं मदद तलब, ठीक है? जी जी जो जी। विशाल शुदा लोग हैं उनसे मदद करने के ये कायल नहीं, नहीं है। इनको अरे सिर्फ इतना उनसे तो जवाब दुआ, देना था। अगर अरे कोई नूर खामोश हसन रहिए। साहब, वो तो फिर दुआ हो जाएगी ना। अरे जो मौजूद नहीं है आप उनसे कैसे मांगोगे? आप बताओ, आप अब्दुल कादिर जिलानी से कैसे मांगोगे? आप मैं बताओ। सिर्फ इतना, मैं मांगने और ना मांगने की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि मांगना चाहिए या नहीं हजरत, मांगना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मदद के ताल्लुक से। तुम्हारी अरे खोपड़ी तुम, में अकल उकल है कि नहीं है यार? अकल बेच के अरे खा गए क्या भाई, फिरोज भाई? इतनी मोटी अकल लेके यार आप करते क्या हो मेरे भाई? मैं कह रहा हूँ तुम नूर क्या हसन इतनी मोटी साहब, अकल लेके कर रहे हो? मतलब मैं पूछ आप रहा जो हूँ। है, आप वही जो बात है है यार, लोगों हाथ से के मुठ ना फूटे सर। आप जो है लोगों के अकीदे से खेलना, यही तुम्हारा काम बन गया है क्या? हमारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम फिर है ये। आपको, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, तुम्हारा आपको काम है ये। आपको अली मिर्जा आपको पिलम्बर की जो है गुफ्तगू सुन आपको सुन के हक तुम्हारा जो है दिमाग आपको सड़ हक चुका है। आपको हक बात बोलनी चाहिए। आप कह देख रहे रहे हैं हैं जनाब, कि इनका ये बिल्कुल कहना है कि तुम विशाल शुदा लोगों से मदद के कायल क्यों हो, ठीक है? कायल इनका ना, ये दावा है, देखिए इनका कहना सुनो, है। और इसको आप जो ये शिरक समझते हैं, आप, हाँ, गुमराहियत समझते हैं, जी न जाने देखिए, बिदअत समझते हैं, न जाने कुफ्र समझते हैं। अभी तक इन्होंने खुल के जवाब दिया ही नहीं है, ठीक है? आप जो आप दूसरी सुनने के बात, कायल, आप सुनने के कायल ही नहीं है हजरत। आप अपनी तुम बात ही सुनने कहे के जा रहे कायल हैं। नहीं हो। मैंने तुमसे इतना आप अपनी पूछा बात ही कहे जा रहे हैं, आप अपनी हजरात, बात ही,
میں وہ आप بات سنوں گا جو میں जवाब तलब कर रहा हूँ। तो ये ये कहो चारों ना मैं तरफ अपनी अलसी ना तो, फैलिए, तो ये चारों कहो तरफ ना मैं दीवार अपनी ना पसंद घूमिए, की बात सुनूंगा। चारों आप तरफ ये अलसी कहो मत ना मैं अपनी करिए। पसंद की बात सुनूंगा मैं। आप ये क्यों कह रहे हैं? आप क्यों ना, देखो मैं कुरान की नहीं एक आयत मैंने बताता ये हूँ। कहा आपसे, देखिए, सुनो 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 अरे सुनो। एक जाहिल आदमी हो यार तुम, अरे यार पढ़े लिखे नहीं लग रहे हो मुझे। तुम मुझसे अगर बड़े पढ़े जाहिल लिखे हो होते ना तो कुछ तुम मुझ सलाहियत के साथ बात करते, अरे तो तुम कोई बात सलाहियत के सुनने साथ के लिए बात करते। तैयार हो? जाहिल लग रहे हो मुझे तुम कोई बात सुनने को खाली तैयार दुनियावी हो? तालीम तुमने हासिल की हो सकती है बस, इसके अलावा कुछ अरे नहीं है तुम्हारे अंदर। तो मैं तो मेरी कह रहा बात हूँ फिर भी समझ इसमें पा रहे हो तुम? इसमें जाहिल क्या हो तुम एक नंबर के यार। इसमें क्या बात है? मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने नी तालीम हासिल करी है। तो फिर इसीलिए तो आप जो बहस कर रहे हो, मैं तुमसे बात आप नहीं करूंगा, चलो जाओ। मैं आप इतना जो छोटा सा रेफरेंस आसान सा गलत दे सवाल रहे हैं, पूछ रहा हूँ, अब मैं तुम्हें समझा दूं जरा। आप अगर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। सुनिए मैं सुनिए, आपको तुम्हारे समझ एक में नहीं कुरान आएगी की मैं आयत तुम्हें, मैं मैंने आपकी एक कहा ना कुरान की सिर्फ समझा हजरत सकता था, मनवा नहीं सकता था। मनवा ना ठीक ना, है, तुम्हारी तो समझाने की मानेगा भी कोई कोशिश नहीं कर हजरत। सकता तो हूँ, मनवाने की तुम्हारी कोशिश नहीं करूंगा। तुम्हारी माने कौन? आप जो अल्लाह से हटा के इधर लगा रहे हो बंदों को। के अंदर मेरे को थायराइड के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, कभी पेट दर्द होता था, कभी चक्कर जैसा लगता था। अभी कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर्बल जो कंपनी है वो दवाई यूज़ करने से फ़ायदा मिला। अभी कुछ भी नहीं है पहले के जैसा मुझे। और मैं जब पहली बार रिपोर्ट निकाली थी तो था अभी, लेकिन अभी निकाली तो नहीं है वो थायराइड वगैरह कुछ भी। जी चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आपको अगर इसमें और एक बात है हमारे पास है ना बेटा, जैसे कि थायराइड से लेके शुगर, दमा, जो भी बीमारियां हैं सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक, हर्बल में है माई लाइफ स्टाइल के अंदर। और हमारे नूर हसन भाई और रोशनी शिफा में भी काफ़ी उसके अंदर रिज़ल्ट है। जैसे कि काले छाइयाँ आते हैं और दिगर बालों का मसला रहता है, किसी के बाल छोटे रहते हैं, कोई गंजापन की शिकायत है, वो हमारे पास है। अगर आप लोग रिस्क नहीं लेते, मुश्किलात से डरते हैं, चैलेंज से घबराते हैं। 97% लोगों का यही तरीका। हाँ, 3% लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ के मुश्किल का मुकाबला करते हैं। तो अब क्या होता है, ये 3% इन 97% के ऊपर बॉस बन जाते हैं। यू नो व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? कारोबार में मुश्किल तरीन चीज क्या है? एक बार की जीत के पीछे 10 बार की हार छुप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल रहे थे ना कि जो क्रीम लिए थे आपसे चेहरा पे लगाने के लिए, मतलब काला छाइयाँ था उसके लिए लिए थे, तो 2 डब्बा लिए थे। तो एक डब्बा तो ख़त्म हो चुका है और एक डब्बे में थोड़ा सा बचा है, लगभग 1 हफ़्ता और चलेगा। तो लगभग काला छाइयाँ जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूछना ये था कि उसको और भी मतलब लगाना है, कितना दिन तक लगाना है थोड़ा सा बताइए। और अगर लगाना छोड़ दे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से मतलब वो रिटर्न आ जाएगा काला छाइयाँ? और भी लगाना है? अभी तो फ़िलहाल पूरा साफ़ हो गया है, तो और भी लगाना है तो थोड़ा बता दीजिए, ठीक है? और कितना दिन लगाना है? और बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, इल्म में, उम्र में, घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान जी हजरत, नहीं अल्लाह के फजल व करम से रिटर्न नहीं आएगा वो, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप उसको करना। अब जो है क्या करना है, 1 दिन बीच करके लगाना है, ठीक है? फिर धीरे धीरे 2 दिन बीच करके लगाना है, फिर हफ्ते में 2 बार लगाना है, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है हजरत? बहुत दिन चलेगा। और गर्मी के मौसम में यूज़ करने के बाद फ्रिज में रख देना है, ठीक है? सर्दी में तो कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर गर्मी में फ्रिज में रख देना है।